السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد کا نام تبدیل کیے جانے کے بعد شہر میں مہا وکاس اگاڑی کی پہلی ریلی کے اسٹیج سے شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی پر چوطرفہ حملے کیے۔ ساتھ ہی شنڈے گروپ کو بھی للکارا کہ اگر ہمت ہے تو وہ بال ٹھاکرے کی تصویر کی جگہ وزیر اعظم مودی کی تصویر کو استعمال کر کے الیکشن لڑیں۔ ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعظم نریندر مودی کی ڈگری سے لے کر بی جے پی میں بدعنوانی تک ہر موضوع پر زعفرانی پارٹی کو نشانہ بنایا۔ برج مٹ کے عنوان سے منعقدہ ریلی میں حالانکہ این سی پی اور کانگریس کے لیڈر بھی موجود تھے، مگر سب کی توجہ کا مرکز ادھو ٹھاکرے ہی رہے۔ انہوں نے بی جے پی میں موجود بدعنوان لیڈروں کا حوالہ دیتے ہوئے پارٹی کو بھرشٹ وادی جنتا پارٹی کے نام سے نواز دیا۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ چونکہ بی جے پی بدعنوانی کو بڑھاوا دیتی ہے، اس لیے اسے اپنا نام بدل کر بھرشٹ وادی جنتا پارٹی رکھ لینا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مودی حکومت عدلیہ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادھو ٹھاکرے نے زعفرانی پارٹی اور مرکزی حکومت کو متنبہ کیا کہ انہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش پر اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے۔ مغربی بنگال کے ضلع ہاوڑہ کے شبھ پور اور قاضی پورہ علاقوں میں 30 مارچ کو ہوئے تشدد کے بعد اتوار کی شام مغربی بنگال کے ضلع ہگلی میں رام نومی جلوس کے دوران مماثل جھڑپیں ہوئی۔ اس جلوس میں بی جے پی کے نائب قومی صدر اور رکن لوک سبھا دلیپ گھوش اور دیگر لیڈروں نے بھی حصہ لیا۔ خانہ قل اسمبلی حلقے کے بی جے پی رکن اسمبلی بمن گھوش اور رشرا پولیس اسٹیشن کے آفیسر انچارج پیالی بسواس سمیت کئی ملازمین ان جھڑپوں میں زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ اتوار کی شام یہ جلوس جیسے ہی مصروف ترین مارکیٹ علاقے راشٹرا میں پہنچا، ایک گروپ نے جلوس پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں جھڑپیں شروع ہو گئی۔ پولیس نے بیٹ چارج کیا اور آنسو گیس شیل برسائے تاکہ صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ بمن گھوش کے سر میں زخم آئے، جس کے بعد انہیں قریبی اسٹیٹ جنرل ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا۔ چندرا گوڑ سٹی پولیس کے کمشنر امیت جاولگی نے بتایا کہ راشٹرا میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں پولیس کی بھاری جمعیت بھی متعین کر دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ خدمات رات 10 بجے تک معطل کر دی گئی تھی۔ گورنر مغربی بنگال سی وی آنند بوس نے چیف منسٹر ممتا بنرجی کے ساتھ ابتدائی تبادلہ خیال کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ریاستی حکومت ایسی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ بہار کے نالندہ ضلع کے بہار شریف میں رام نومی تقاریب کے دوران تشدد میں ہندو جنونیوں نے ایک مدرسہ اور ایک مسجد کو نظر آتش کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق 31 مارچ کو تقریباً 20 افراد مسجد میں داخل ہوئے اور اسے نظر آتش کیا۔ مسجد کے امام نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی میں جلوس میں مسجد کے پاس سے پرامن طور پر گزر گیا۔ یہ مسجد ایک موڑ پر واقع اور اطراف میں مسلم آبادی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہونے پر کہ مسجد سنسان ہے، ہجوم نے اس پر حملہ کیا۔ امام نے بتایا کہ مسجد کو نظر آتش کرنے سے قبل سنگباری بھی کی گئی۔ اس مسجد سے متصل مدرسے کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان شخص کی ہوٹل کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ بہار کے ساسارام کے بشمول مختلف مقامات سے پرتشدد واقعات کی اطلاعات ہے۔ پولیس نے بتایا کہ بہار شریف کی صورتحال بالکل معمول کے مطابق ہے۔ اس کے باوجود پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں۔ رام نومی کے بعد بھی بہار میں کشیدگی برقرار ہے، کیونکہ روہتاس اور نالندہ میں تازہ تشدد پھوٹ پڑا۔ نالندہ کے بہار شریف میں کل شام 2 گروپوں کے درمیان جھڑپوں میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ روہتاس ضلع کے ساسارام ٹاؤن میں ایک دھماکہ بھی پیش آیا جس میں 6 افراد زخمی ہوئے۔ ریاست کرناٹک کے ضلع رام نگرہ میں جو بنگلورو سے 20 کلومیٹر دور واقع ہے، گورکشکوں نے حملہ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور اس کے 2 ساتھیوں کو زخمی کر دیا۔ گزشتہ رات پیش آئے اس واقعے کے سلسلے میں پولیس نے گورکشک یونٹ کرہیلی اور دیگر 4 کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ مقتول کی شناخت ادریس پاشا کی حیثیت سے کی گئی، جو ریاست کے ضلع منڈیا کا رہنے والا تھا۔ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب پولیس نے کنٹینر ڈرائیور سید ظہیر کو پونیت کی شکایت پر گرفتار کیا۔ پونیت اور اس کے گینگ نے ایک گاڑی کو روکا تھا جس میں مویشی لے جا رہے تھے۔ پولیس ذرائع کے موجب گاڑی ستور پولیس اسٹیشن کے سامنے روکی گئی اور ادریس پاشا اور لوڈر عرفان کا پیچھا کیا گیا۔ بعض لوگوں نے ادریس کا پیچھا کیا اور ان میں 2 نے ظہیر پر حملہ کر دیا، جو گاڑی کے قریب کھڑا تھا۔ ایک پولیس کانسٹیبل نے مداخلت کی اور ظہیر اور پونیت کو پولیس اسٹیشن لے گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ادریس پاشا نے مقامی مارکیٹ سے مویشی خریدنے کی رسید تک دکھائی، لیکن پونیت اور دیگر افراد نے اس پر حملہ کیا۔ انہوں نے اس سے پاکستان چلے جانے کو کہا۔ مار کھانے کے بعد ادریس بے ہوش ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ ناظرین، زعفرانی پارٹی کے غنڈہ گردی اب جنوبی ریاستوں میں بھی پھیلنے لگی ہے۔ ریاست کرناٹک پہلے سے کافی حساس ہو چکا ہے۔ یہاں پر بھی گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ جنوبی ریاستوں میں گنگا جمنی تہذیب ہندو مسلم بھائی چارے کی ایک مثال تھی، جہاں کے ماحول کو آلودہ کیا جا رہا ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔
महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में गुज़िश्ता शब आगरा रोड सखावत होटल के पास एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इस मामले की तफसीलात के मुताबिक मालेगांव से गुजरने वाली सपत सरंगी गढ़ की यात्रा पर जाने वाले अफराद में से कुछ ओबाश नौजवानों ने मुबैना तौर पर एसएस मोबाइल दुकान और अतराफ की दुकानों पर अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिसके सबब एसएस मोबाइल और अतराफ की दीगर दुकानों के शीशे पूरी तरह से टूट फूट गए और देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यात्रा पर जाने वालों में से कुछ नौजवानों का हुजूम भगवा झंडे और डीजे के साथ नाचते गाते नारे लगाते हुए गुजर रहा था। आगरा रोड सखावत होटल के पास पहुंचते ही इस हुजूम ने अचानक दुकानों पर पथराव करना शुरू कर दिया और पथराव करने के बाद वो खवातीन और बच्चों के ग्रुप में शामिल हो रहे थे ताकि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाए कि पत्थर किस सिमत से आ रहे हैं। पथराव के सबब कई दुकानों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा और कुछ दुकानदार भी जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मुदाखलत करते हुए फौरी तौर पर हालात को काबू में कर लिया, जिसकी वजह से मामला तशद्दुद की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। इंतजामिया को इस किस्म के रैली के लिए इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अगर इस किस्म के रैली में इसी तरह के तशद्दुद फूट पड़ेंगे तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया होगी। लोकसभा इंतखाबात 2024 जून करीब आ रहा है। सियासी जमातों के एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। नए सियासी पार्टियां एक दूसरे को जेर करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाने में भी मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए एक वीडियो मुहिम शुरू की है। वीडियो में यूपीए हुकूमत के दौरान मुबैना तौर पर हुई बदउनवानी को दिखाया गया। बीजेपी ने इतवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस फाइल्स के उन्वान से सीरीज का पहला वीडियो पोस्ट किया। इसने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की क़यादत वाली हुकूमत मुख्तलिफ घपलों में मुलविस थी, जिनमें 2G, कोयला और दौलत मुश्तरका खेलों के घपले शामिल थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को बिहार के नोएडा जिले के बसवा के इंटर स्कूल मैदान में मुनक़िदा अवामी जलसे से खिताब करते हुए बिहार में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर वज़ीर आला नीतीश कुमार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सहसाराम में रामनवमी के मौके पर हुए फसादात पर लोगों से कहा कि आप बिहार में बीजेपी की मुकम्मल अक्सरियत से हुकूमत बनाएं, हमारी हुकूमत फसादियों को उल्टा लटका कर सीधा करेगी। हम खुशामद और वोट बैंक की सियासत नहीं करते। अमित शाह ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में फसादात नहीं होते। इख्तिदार का लालच दिखाकर लालू यादव के बेटे ने नीतीश कुमार को क्या किया नहीं कहा। नीतीश कुमार को सांप, पलटू चाचा, धोखेबाज, लालची, मगरूर और गिरगिट भी कहा, लेकिन नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लालच में इनके साथ चले गए। अमित शाह ने कहा कि नीतीश बाबू की इख्तिदार की भूख ने इन्हें लालू यादव की गोद में बैठने पर मजबूर कर दिया। वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, लालू जी के बेटे को वज़ीर आला बनना है। इसमें बिहार के अवाम पिस रहे हैं। लालू और नीतीश गलत फहमी में है, लेकिन बिहार के लोग किसी गलत फहमी में नहीं हैं। बीजेपी हुकूमतों का मुख्तलिफ शहरों और यादगारों के कदीम नाम तब्दील करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी ज़िमन में अब मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत ने तारीखी हैसियत के हामिल नसरुल्लागंज का नाम रियासत भोपाल के नवाब खानदान से जुदा कर दिया है। हुकूमती अहकाम के मुताबिक अब इसे भिड़िवंदा के नाम से पहचाना जाएगा। ख्याल रहे कि भिड़िवंदा सैमूर जिले के बोधनी असेंबली हलके में आता है और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान यहीं से रुकने असेंबली है। इत्तलात के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला से मंजूरी हासिल होने के साथ ही रियासती हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ऐलान कर दिया कि अब नसरुल्लागंज का नाम भिड़िवंदा कर दिया गया है। हिंदुस्तानी क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक सलीम दुर्रानी इतवार को कैंसर के साथ तवील जंग के बाद जामनगर में वाक़ अपने घर में इंतकाल कर गए। ज़राए के मुताबिक वो 88 साल के थे। 11 दिसंबर 1934 में काबुल अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। सलीम दुर्रानी 1961 से 66 में इंग्लैंड के खिलाफ हिंदुस्तान की सीरीज में फतेह के हीरो थे। उन्होंने कोलकाता और चेन्नई में बिल्कुल तरतीब 8 और 10 विकेटें हासिल की। एक दुहाई के बाद उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हिंदुस्तान की फतेह में क्लाइव लाइड और गैरी सोबर्स की विकेटें हासिल करके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हिंदुस्तान को पहली मरतबा जीत दिलाई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मोदी ने कहा कि सलीम दुर्रानी जी क्रिकेट के लेजेंड थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान के उरूज में अहम किरदार अदा किया था। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफीन के सदर और इमाम काबा अल शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज अल सुदैस ने हरमैन शरीफीन की दीगर क़यादत के हमरा हजर अस्वद और काबे शरीफ को अतर से धोकर इन मुक़द्दस मकामात को मुअत्तर किया। इस मौके पर इमाम काबा और सदारत आमा बराए उमूर हरमैन के सरबराह डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा है कि हरमैन शरीफीन और ज़ायरीन की खिदमत खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पहली तरजीह है। वो बैतुल्लाह में आने वाले अल्लाह के मेहमानों को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखते हैं। काबे शरीफ और दीगर मुक़द्दसात की देखभाल सऊदी क़यादत की अवलिन तरजीह है। जनरल प्रेसिडेंसी बराए उमूर हरमैन शरीफीन की जानिब से खाने काबा को मुअत्तर करने के लिए आला दर्जे के ऊद का इस्तेमाल किया जाता है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तालीमी डिग्री के बारे में जारी तनाज़े के दौरान BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव और रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने ट्विटर पर तंज़िया रिमार्क्स करते हुए तालीमी डिग्री को मौजू बनाया है। KT रामाराव ने डिग्री जाहिर करने से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के इनकार पर तनकीद करते हुए पेशकश की कि वो अपनी तालीमी डिग्रियों को बरसरेआम करने तैयार हैं। KTR की बहन के कविता, जिन्हें शराब स्कैम मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात का सामना है, ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म की डिग्री मामले में तबसरा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हकीकी डिग्री रखने वाले अफराद रोजगार से महरूम हैं, लेकिन एक शख्स जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, इसे आला तरीन ओहदा हासिल हुआ है। कविता ने मुल्क में बेरोजगारी की शरह का हवाला देते हुए डिग्री के इजहार से इनकार पर नुक्ताचीनी की। कविता ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7.5% है, जो गुज़िश्ता 3 माह में सबसे ज़्यादा है। अफसोस इस बात पर है कि नौजवानों की सलाहियतों को बरवाकार लाने के लिए कोई मसाई नहीं जाती है और ना किसी को फिक्र है। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के नवाही इलाके क्रिस्टल टाउनशिप में मौजूद 200 इमारतों को मुनहदिम किया जाएगा और इब्तदाई तौर पर इस वेंचर में ज़ेर तामीर इमारतों की इंहदामी कार्रवाई को मुकम्मिल करने के इक़दाम किए जाएंगे। मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद ने बंडलागुड़े में वाक़ क्रिस्टल टाउनशिप में इंहदामी कार्रवाई का आगाज़ करते हुए यह बात बताई और कहा कि 44 एकड़ पर मुहित इस वेंचर को मंजूरी हासिल नहीं है और इस वेंचर के मुतालिक तेलंगाना हाईकोर्ट के अहकामात मौजूद हैं और इलाके के मकीनों को बल्दिया की जानिब से मुसलसिल नोटिसों की इजराई अमल में लाई जाती रही है। बल्दी अहदेदारों ने गुज़िश्ता रोज़ क्रिस्टल टाउनशिप बंडलागुड़े में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में बुलडोजर्स की मदद से इंहदामी कार्रवाई का आगाज़ किया और कहा कि इस टाउनशिप में 200 इमारतों की निशानदेही करते हुए इन्हें नोटिस जारी कर दी गई है और इनकी जानिब से अब तक किसी भी तरह का जवाब मौसूल नहीं हुआ है। इसके बाद ही बल्दिया ने इस वसी व अरीज़ वेंचर में इंहदामी कार्रवाई का फैसला किया। क्रिस्टल टाउनशिप में जायदाद खरीद कर अपने मकान तामीर करने वालों का कहना है कि अगर वेंचर गैर कानूनी और गैर मंजूरा है तो फ़रोख्त के वक्त सरकारी महकमा जात ने क्यों खामोशी अख्तियार की और किस तरह से इन जायदादों का रजिस्ट्रेशन किया गया। मकीनों की जानिब से किए जाने वाले इस इस्तिफ्तार पर बल्दी अहदेदारों ने बताया कि वो अदालत के अहकामात पर अमल आवरी को यकीनी बना रहे हैं। इस इंहदामी कार्रवाई के लिए टाउनशिप में भारी पुलिस फोर्स को मुतय्यन किया गया। इसके बावजूद भी क्रिस्टल टाउनशिप के मकीनों ने GHMC की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। प्राइड इंडिया की जानिब से फरोख्त किए गए इस वेंचर और कंपनी के जिम्मेदारों पर मुतासरीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गैर मंजूरा लेआउट के सिलसिले में इन्हें यह कहा गया था कि इस वेंचर में मौजूद अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए LRS के तहत दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी है, लेकिन अब जब बल्दी अहदेदारों की जानिब से 200 इमारतों की निशानदेही की गई है जिन्हें इनके मुताबिक मुनहदिम किया जाना है, इनके मालिकीन LRS की दरख्वास्तों के मौक़िफ़ के मुतालिक आगाही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अडानी कंपनियों के 16,000 करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया है। सिद्दीपेट जिले के नारायण राव पेट में BRS के इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मोदी हुकूमत मखसूस कॉरपोरेट घरानों को सरकारी इदारे हवाले करने की मनसूबाबंदी कर रही है। मुनाफा में चलने वाले सरकारी इदारों को अपने करीबी अफराद के हवाले करने की मनसूबाबंदी के खिलाफ मुल्क के अवाम को आवाज़ उठाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल ज़रई शोबा और किसानों को नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन KCR ने ज़रई शोबे को मुनाफा बख्श और खुशहाल बनाया है। रमज़ान मुबारक में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब मुसलमानों को तहाइफ गिफ्ट पैक की तकसीम का आगाज़ किया जा रहा है। इस रमज़ान में 4.5 लाख मुस्तहिक मुसलमानों में गिफ्ट पैक की तकसीम अमल में लाई जा रही है। हज हाउस नामपल्ली से रियासत के मुख्तलिफ मकामात को गिफ्ट पैकेजेस आज रवाना कर दिए गए हैं। कमिश्नर व डायरेक्टर अखिलती बहबूद B शफीउल्लाह TFS ने सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान के हमरा रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर CEO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन और अखिलती बहबूद के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हल्के पार्लियामान हैदराबाद के मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में सड़कों की तोसी के कामों के लिए 268 करोड़ 19 लाख रुपए हुकूमत ने मंजूर किए हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में सड़कों की तोसी के काम कई मुकामात पर जारी है। काम तो शुरू हुए हैं, लेकिन तकमील कब होगी, इस इलेक्शन में या फिर इस इलेक्शन के बाद, पता नहीं, क्योंकि पुराने शहर में कई ऐसे काम मुलतवी किए जा चुके हैं जो काम पर तख्ती तो लगा दी जाती है लेकिन उसके काम मुकम्मिल नहीं हो पाते हैं। पुराने शहर और दीगर इलाकों में कई जगहों पर फंड्स ना होने की वजह से काम ज़ेर-ए-इल्तवा थे। मजलिस के लीडरों का यह दावा है जा रहा है कि इसकी किल्लत की वजह से जो काम रुके हुए थे, इन कामों को अब शुरू करवाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके पुराने शहर में सड़कों की तोसी के कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। सदर मजलिस ये चाहते हैं कि पुराने शहर में भी अवाम को सहूलत हो सके और ट्रैफिक में बार बार खलल की शिकायत दूर हो सके, ट्रैफिक के बहाव में आसानी हो सके। फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन ने मुसलमान खिलाड़ियों को मैच के दौरान इफ्तार का वक्फा ना देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक फुटबॉल फेडरेशन ने
रेफरियों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि मुसलमान खिलाड़ियों को रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त देने के लिए मैच ना रोका जाए। कबल अज़ीं 2 रोज़ कबल फ्रांस की कौमी टीम के मुसलमान फुटबॉल खिलाड़ियों को मुबैना तौर पर रमज़ान के मुक़द्दस महीने के पहले 5 रोज़ों को मुलतवी करने को कहा गया था ताकि मैचेस के दौरान इनकी कारकर्दगी पर खलल ना पड़े। ताहम खिलाड़ियों ने इस फैसले को नज़रअंदाज कर दिया था। गुज़िश्ता दिनों इंग्लिश प्रीमियर लीग में रोज़ेदार मुसलमान फुटबॉलर्स के लिए मैचेस में इफ्तार ब्रेक का फैसला किया गया था, जिसे दुनिया भर में सराहा गया था। साल 2022 में जर्मन फुटबॉल लीग के दौरान एक हैरत अंगेज लम्हा देखने में आया था जब रेफरी ने मुसलमान फुटबॉलर मूसा को मैच रुकवा कर रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त दी थी। वाज़ेह के फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन के तहत क्लब्स की लीग जारी है जिसमें कई मुसलमान खिलाड़ी भी शरीक है, लेकिन इन्हें इफ्तार का वक्त ना देने को कहा गया है।